Hi everyone, welcome to Facebook Live. This is Kunal Bothra. I hope my voice is audible to all of you guys. Super. So today again is one of the very interesting sessions which we've highlighted uh, that क्या रहा है markets में? Why are the markets falling? What is the reason behind this fall? Uh, what is the implication behind this sudden sell-off which is taking place in the market? So uh, all we need to now look out for is that what is the extent of the sell-off from here on. How will the market settle off, whether this is a near-term correction for the markets or whether this is a correction which would probably see more legs on the downside, or whether there is a correction which will stall completely and immediately. तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है which of course we know that it's very difficult to understand in this kind of a market environment. But my belief and my sense is that I've broken up this very interesting question into three different parts of analysis. तो आज का जो सेशन हम जो कर रहे हैं उसमें मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा तीन फैक्टर्स जो है सेंटिमेंट, फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल्स. ये तीन फैक्टर्स जो ब्रॉडली आपको सारा मार्केट का जो मेजर पर्सपेक्टिव है वो सब कुछ बता देगा. मैंने क्लास में ग्लोबल मार्केट का टच भी रखा हुआ है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकली इन यूएस मार्केट्स व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई द ट्रेंड्स आर completely different over there and what could probably happen over there in the near term as well as over the medium term. So, of course, we are now into a point where the world is into a dichotomy. Dichotomy, matlab two completely different, divergent trends across the globe. In the European markets, we are seeing most of the European markets at an all-time high levels. You're seeing US stocks bouncing off significantly from the recent lows. I think I don't know whether you guys have seen the charts for Tesla, Amazon, Google, etc. These stocks have gone to a very strong and a vicious bounce, if I can use that word, for themselves. The good part, as you can see in the third point, is that the natural gas prices and the crude oil prices they have started to correct. Now, first point, which comes to mind is that why are the crude prices correcting? Of course, it could be recessionary fear, something which could be probably because of recession and loss of or lack of demand. There could be a sudden correction in the crude oil prices and it may remain into a lower end. But if you go deep into understanding, then this would indicate that the markets are not too much of worried with the Russia-Ukraine crisis, which is ongoing crisis. So something which was, I would say, sudden for the markets in the last year, 2022, which started off this cycle of correction for the global markets completely. That fear is not there in the markets right now. And ये दो factors जो है ना वो सबसे important है. So as you can see, the first point, which is the European markets are at an all-time high levels. Now you look at FTSE, you look at DAX, you look at CAC. Some of them have already crossed, I think, by 5% margin. Some of them are just about on the verge of doing it, and some of them are just 2% or 5% away from the previous major highs for themselves. This comes at a point when most of the other emerging markets, even Indian markets as such, they are now nowhere closer to the previous highs. We are like maybe 8%, 9% below the previous lifetime highs. So that tells you that that the world is moving into a different tangent altogether. Generally, it is said, generally, and I'm talking of this as a प्योर टेक्निकल पार्लांस, जो टेक्स्ट बुक थ्योरी होती है ना कि यूरोपियन मार्केट्स दे स्टार्ट द फर्स्ट बुल मार्केट्स फॉर द ग्लोब. तो अगर आप लास्ट 100 ईयर्स 150 ईयर्स का डेटा भी निकाल दोगे ना तो जनरली इट इज सेड दैट व्हेनेवर यूरोपियन मार्केट्स गो इनटू अ रैली और गो इनटू एन अप ट्रेंड where these indices break past about their life highs, that's the first indication that the global bull market starts off again. Okay, so again this is not कि कल से मार्केट वापस से रैली करेगा, बट दिस इज एन इंडिकेशन दैट वी आर इनटू अ स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड. सो टिल द टाइम दीज यूरोपियन इंडाइसेस कंटिन्यू टू मेक अ न्यू हाई, which is the first point which I have highlighted again. Okay, this is a high probability that our markets would continue to move up higher. So all you require now is patience and to ride out this phase of volatility. The last point is very important. अगर आपको ध्यान होगा last point जो मैंने डाला है that there is no major selling which is happening into the Indian large cap names. So as you can see, ज़्यादा selling vision नहीं आ रही है because
I think for example stocks like Reliance, Infosys, TCS, Bajaj Finance and so many of the stocks, they've already made a bottom for themselves, है ना? So that's one of the major reasons why I would believe that our markets are completely different than the rest of the global markets. Now, the second point is very important. Now, is this India specific correction? तो इस पे मैं आपको सबसे बढ़िया एक पॉइंट बताऊंगा कि इंडेक्स, वी ऑल नो दैट इट फॉलोज द स्टॉक्स. ये अदर वे राउंड होता है. जनरली हमारी थीसिस होती है कि स्टॉक्स stocks always follows the index trend, but it's the other way round. There are few leaders and few laggards. The leaders will always correct first, and the leaders will always rise first in every kind of a market trend. तो हमें हमेशा आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि विच आर द सेक्टर्स एंड स्टॉक्स विच आर द लीडर्स, which falls first and which rises first. The second is that get ready for your patience being tested. I know that the consolidation has lasted for 3 months approximately. I think ये तीसरा महीना है consolidation का Indian markets में, but trust me, get ready for your patience being tested the most. So this point is the most interesting point, and in the next few slides of the presentation today, I will highlight that why योर पेशेंस इज गोइंग टू बी टेस्टेड द मोस्ट. अगर आपको लग रहा है कि अभी तक आपने इतना पेशेंस टेस्ट कर लिया, मार्केट में इतना सहन कर लिया, मतलब वो बहुत हो गया, द बहुत इज गोइंग टू बिकम एक्सट्रीम बहुत फ्रॉम हियर ऑन, एंड आई विल टेल यू द रीजंस व्हाई. नाउ ऑफ कोर्स बिफोर वी मूव ऑन, फॉर ऑल द लिसनर्स हु आर पार्ट ऑफ आवर फेसबुक लाइव, जस्ट अ रिक्वेस्ट दैट यू कैन mention, give your comments on the comment box. Don't forget to like and love and share the video. I mean, the more you share, the more you like the video, the more we can spread this knowledge to the entire investor and trader community. So take some time out and do like the video before we move ahead. So now comes the point कि why are our markets so resilient, और markets resilient होने के बाद में भी हमने क्या क्या सहन किया है indices में. Now of course last year we can say that the markets outperformed, but look at this year, the Adani fiasco. I mean, it was so brutal for stocks. It's amazing, trust me. A 4,000 rupee stock going into 800 rupees in just a matter of less than 1 month. मतलब 30 days भी पूरे नहीं हुए हैं और 4,000 का स्टॉक 800, मतलब 80% of the wealth being wiped out in just 30 days or less than 30 days. You can name the list of stocks: Adani Enterprise, ports, transmission, gas, power. The correction is steep into these names, but look at the impact that our markets and the Nifty as such has been very resilient. तो अगर इतना बड़ा करेक्शन एक स्पेस में आता है, फिर भी हमारा मार्केट एकदम स्लो स्टेडी ग्रेजुअल करेक्शन कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इंडियन मार्केट्स है और जो निफ्टी है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है ना. That you might see these small issues which can keep on nagging, but broadly it may not have a major impact on our markets. तो अगर कोई सोच रहा होगा कि शायद निफ्टी में एक मेजर करेक्शन क्यों नहीं आया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट्स में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. जो सेकेंड पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आई डोंट नो वेदर यू गाइज आर एक्चुअली लुकिंग एट दिस पॉइंट. September 2022 dollar index was at 114. The Nifty, rather the rupee was at 82.5 levels approximately. We are still at 82.5, 82.8 on the rupee, and the dollar index is at 104. So which means the rupee has technically depreciated in the last 4-5 months from the September highs of dollar index. So that's also one of the other points why the FIIs are not too much interested into our markets. And third point is also very important: silent selling from FII. आप देख रहे हो तो कंसिस्टेंट सेलिंग हो रही है, कभी 200 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 800 करोड़, कभी 1000 करोड़. एक स्लो स्टेडी ग्रेजुअल सेलिंग हो रही है, which means that even the FIIs don't want the markets to get into a panic scenario, है ना. तो FIIs also don't want to create a panic in the markets. They are just trying to offload or reduce the investments in Indian markets so that they can probably take advantage and deploy that money in some other markets, like what is happening in European markets, what is happening in many of the other Asian markets. Many Asian markets like China, Taiwan, etc., they're supposed to be at a much cheaper valuation. So ये valuation adjustment हो रहा है
हम हमारे मार्केट्स में एज कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट, एंड दैट इज वाई यू नॉट सीइंग अ ब्रूटल सेलिंग which is happening on the large cap names. This is a very very important point which you need to note it down. Very quickly on the options data, on the open interest data, because आज एक्सपायरी थी फेब्रुवरी सीरीज की, तो अगर हम देख रहे तो कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आ रहा है ओपन इंटरेस्ट में. जैसे कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वी वर एट 2,23,000 ऑन द एक्सपायरी डे. तो हमने जब नवंबर की एक्सपायरी थी तब दिसंबर में इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए थे. दिसंबर एक्सपायरी डे के दिन जनवरी कॉन्ट्रैक्ट्स 2,10,000. फेब में मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, या फिर मे बी बिकॉज ऑफ द बजट द मार्केट्स वेंट इन लाइट, सो वी वर एट 1,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ वी आर बैक टू दैट एवरेज ऑफ 2,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. दिस डेटा कुड बी रिवाइज बिकॉज ये आज का टेंटेटिव डेटा है, हो सकता है कि शायद थोड़ा सा ट्वीक हो सकता है इस नंबर में, बट ब्रॉडली टेल्स यू दैट वी आर एट अ जोन वेयर द ओपन इंटरेस्ट इज broadly at 2,10,000, 15,000 to 20,000 contracts on the March futures. The three major observations which we are going to discuss today, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा. अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट टाइम जब हमने आई थिंक दिसंबर में जब हमने फेसबुक लाइव किया था, तब मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि मार्केट्स विल करेक्ट टुवर्ड 17,500, एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन द निफ्टी वाज एट 18,500. बुल मार्केट चल रहा था, ऑब्जर्वेशंस एकदम तेजी के आ रहे थे, सब कुछ एकदम फैंटास्टिक चल रहा था फॉर आवर मार्केट्स. बट दैट वाज अ टाइम इन अ प्रीवियस फेसबुक लाइव वी मेंशन्ड दैट द निफ्टी इज गोइंग टू कम बैक टुवर्ड 17,500. हाँ, हमको एक महीना लगा, 1 से सवा महीना लगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए, बट हमने ऑलमोस्ट 17,500 के लेवल्स को टच किया है. अब जो पॉइंट है कि यहां से क्या होगा, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज पास्ट, what is going to come is going to be the most important point of discussion over here. तो मैंने 3 मेजर फैक्टर से एनालाइज किया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. तो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, कैन आई हैव अ फैबुलस yes or an emphatic yes from all of you on the comment box. 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस, और ये आपको जब मैं बताऊंगा, ये ऐसी ऑब्जर्वेशंस आपको कोई टेक्स्ट बुक में, कोई भी आपको डिस्कशंस में कभी भी नहीं मिलेगी ये. बट ये मैं जो आपको ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, इट विल ब्लो योर माइंड आउट एंड यू विल बी लाइक वाओ, मतलब ये नया चीज है, कुछ सीखने को मिला हमको. एंड यू कैन यूज एंड इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स. सो आई वॉन्ट एन एम्फैटिक येस दैट यू आर लाइकिंग इट. प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. Okay, please do like and share the video as well. And for all of those guys who share the video, only for them we will take the Q&A once we finish off this presentation. Lovely. So we are getting an emphatic yes from all of you and a superb like and everything. Superb. तो मैं आज आपको बताऊंगा कि CMB जो इंडिकेटर है, जिसपे मैंने ट्वीट भी किया था दो या 3 दिन पहले, कि हाउ CMB इंडिकेटर इंडिकेट्स मेजर मार्केट बॉटम्स. मैं आज आपको बताऊंगा कि उसकी ऑब्जर्वेशन क्या बता रही है. द फर्स्ट इज, समवन सेड, अरे CMB इंडिकेटर तो मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म इंडिकेटर. मैं आपको बता रहा हूं लास्ट 7 years to 10 years की हिस्ट्री निफ्टी की. अब ये करीबन 2013 के आसपास है ना. तो ये निफ्टी का चार्ट है, जो ब्राउन लाइन आप देख रहे हो ये निफ्टी का चार्ट है. दीज बार लाइन्स व्हाट यू कैन सी इज द CMB indicator, which is the cumulative market breadth. I will repeat once again, it's the cumulative market breadth. अब मार्केट में हमेशा 2 टाइप के करेक्शन आते हैं. ओके, पहला आता है करेक्शन जहां पे किसी को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, बट ये ऐसा करेक्शन आता है जिसमें हम रीजंस ढूंढते हैं बट हमको रीजंस मिलते नहीं है. ओके, सेकेंड करेक्शन जो होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि इवेंट बैक्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, वो एक इवेंट था, उसके बेसिस पे करेक्शन आया. कोविड का सेल ऑफ एक मेजर करेक्शन था, उसके बेसिस पे एक सेल ऑफ आया. तो हर करेक्शन की अलग अलग स्टाइल होती है. जो 2 ब्रॉड डिस्टिंक्शन होते हैं करेक्शंस के, पहला होता है करेक्शन जिसमें हमें मेजरली कोई इवेंट नहीं होता है बट मार्केट से एक नेचुरल मीन रिवर्जन करते हैं, और सेकेंड होता है इवेंट बैक करेक्शन. नाउ वी कम टू दिस चार्ट. अब ये जो आप लाइन देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये है जो लाइन है -10 की लाइन है. एज यू कैन सी, मैंने एरो से मार्क कर रहा हूं यहाँ पे आपको. मैं मेरे कर्सर पे, आप मेरे कर्सर पे फॉलो कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये -10 का लेवल है. दिस इज अ -10 लेवल
on the CMB indicator. Now, what you need to see is whenever the CMB indicator, which is this bar graph, okay, CMB is cumulative market breadth. Breadth मतलब सांस नहीं, breadth मतलब the market breadth overall. So CMB, that is the cumulative market breadth, ये जब जब इंडिकेटर -10 के आसपास आता है, so as you can see that whenever this indicator comes into -10 or below, as you can see over here, this was in 2016, the indicator, the CMB indicator fell towards -10. In a series of next 2 to 3 weeks, the index made a major bottom, and then you saw a huge rally, a rally which took the India Nifty past the previous highs. सेम हुआ यहाँ पे 2017 के सेकेंड हाफ में. ओके, अगेन मार्केट्स फेल शार्पली, सीएमबी इंडिकेटर क्विकली -10 पे आ गया. वहां से हमने देखा कि ब्रिलियंट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई और मार्केट्स ने एक न्यू हाई बनाया. सेम वॉज इन 2018, दिस वॉज 2019. तो आप देख रहे हो जब जब ये सीएमबी इंडिकेटर -10 के आसपास आता है, वहां से एक बेस बिल्डिंग की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे -10 आ गया मतलब मार्केट ने एक बॉटम बना दिया. इसका मतलब वो होता है कि जब -10 आ जाता है तब आपको आपके दिमाग से डर निकाल देना चाहिए, एंड यू शुड स्टार्ट गोइंग इनटू अ शॉपिंग लिस्ट. अब आपको क्या करना है, पोजीशन करना है कि नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स बेस्ड ऑन द सीएमबी इंडिकेटर, that when the markets or till the time the markets or the CMB indicator is below -10, निफ्टी एक बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस में बना रहा है, एक बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस में जाएगा. हो सकता है कि इस प्रोसेस को 2 हफ्ता लगे, हो सकता है कि 3 से 4 हफ्ते भी लग जाए. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट कि क्या हो सकता है, बट ये इंडिकेशंस बहुत स्ट्रांग है बिकॉज ये जो डेटा है ये हिस्टोरिकली ब्यूटीफुली वर्क किया है. ये आपको सिनारियो बताता हूं 2015, ये 2015 का जो मेजर करेक्शन है निफ्टी का, अगर आप यहाँ पे मेरे कर्सर को फॉलो कर रहे हो, दिस इज 2015 व्हेन द मार्केट सोल्ड ऑफ, द निफ्टी मेड अ लो, वी बाउंस्ड ऑफ, वी मेड अनदर न्यू लो. हमने एक नया लो बनाया, बट उसके बाद जो एक बॉटम बना, वो बॉटम को हमने सालों साल टेस्ट नहीं किया है. जो 2015 में हमने जो बॉटम बनाया था निफ्टी में, उसके बाद हमने सालों साल इस बॉटम को टेस्ट नहीं किया है. And markets have been making just new highs after that. Why is this important? So now let's look at 2022. This is 2022. आप देख रहे हो कि CMB इंडिकेटर जैसे -10 पे आ गया, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया. वापस से CMB इंडिकेटर जून 2022 में आया, अब आप देख रहे हो कि इसको वापस से बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो गया. 1 से 2 महीने का प्रोसेस लगा यहाँ पे, और उसके बाद में सुपर अप ट्रेंड आया, और उस अपट्रेंड में हमने इंडेक्स ने नया हाई बनाया. अगेन द सीएमबी इंडिकेटर, अब मैंने इसको जूम किया है इसको यहां पे, है ना. अगेन द सीएमबी इंडिकेटर एज यू कैन सी हैज एंटर्ड इनटू -10, which means, so if you go back to my video, if you've missed out, for guys who have joined us now, if you go back to our video, आपको पूरा पता चल जाएगा कि सीएमबी इंडिकेटर एग्जैक्टली क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है. This indicates, as you can see over here, that we have started a process of base building or formation of a support over here for the index. So this is the first major observation. अब इसका मतलब मैं अभी अगेन रिटेट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मार्केट नया पुराना लो नहीं बनाएगा. एक पुराना लो वापस से बना सकता है, एक नया लो साइकोलॉजिकली भी टेस्ट कर सकता है, बट यहां से और ये प्रोसेस, ये 1 मंथ का जो प्रोसेस है, 1 या 2 मंथ का प्रोसेस है, यहां पे मार्केट्स मेजर बेस और मेजर सपोर्ट्स बनाते हैं, है ना. तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू वॉच आउट फॉर. आई अगेन गो बैक, लुक एट दिस, इट हैज अ ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट, ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट. मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूं. अगर आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स, अगर एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी के सारे ऑर्गन्स टिप टॉप चल रहे हैं, it is impossible that the person can collapse. Okay, it's in the same manner when the market breadth is oversold and when the market breadth starts to recover, it is impossible that the index will not recover. Okay, I'm using that word impossible. Market breadth इतनी ज्यादा strong observation होती है. Okay,
हम लोग प्राइस वाइज बॉटम ढूंढते, बट एक्चुअली मार्केट जब बॉटम बनाता है वो मार्केट ब्रेथ वाइज बॉटम बनाता है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, एंड आई थिंक यू विल लव दिस ऑब्जर्वेशन। आई एम ऑलरेडी सीइंग मेनी कमेंट्स ओवर हियर दैट इट्स अ फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन, इट इज अ माइंड ब्लोइंग ऑब्जर्वेशन। इसकी खाली एक ही प्रॉब्लम है, बताऊं क्या प्रॉब्लम है? ये जो डेटा इसमें आता है, यानी जो ऑब्जर्वेशन आती है वो 3 महीने 6 महीने के पीरियड में आती है, तो इसमें वेटिंग पीरियड बहुत होता है। बट जब जब आता है तब बहुत मजा आता है एज अ कॉन्ट्रा ट्रेडर टू गो लॉन्ग ऑन द इंडेक्स और टू लुक आउट फॉर कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब मैंने आपको बताया सीएमबी विच इज क्यूमुलेटिव मार्केट ब्रेथ और सेंटिमेंट इंडिकेटर। अब आप बोलोगे यार सेकंड मेरे को बताओ ये फंडामेंटल में कैसे असेस करूं? अगेन दिस ऑब्जर्वेशन विल ब्लो योर माइंड अवे। ओके, नाउ निफ्टी का पी रेशियो हम सबको ट्रैक करता है, बरोबर? हमें पता है कि निफ्टी का पी रेशियो करीबन 20 के आसपास, और 20 के आसपास बेरिश या ओवरसोल्ड हो जाता है, और 30-35 के आसपास हम ओवरबॉट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डेटा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और ये स्पेशली लास्ट 10 ईयर्स में जहां से हमने पीई की रेशियो डिफाइन की है, एक न्यू रेंज डिफाइन की है पीई की। ये देखो, जब भी पी रेशियो 20 के नीचे आता है निफ्टी का, ये मंथ एंड क्लोजिंग के बेसिस पे तो जब भी निफ्टी का पी रेशियो 20 के नीचे आता है, ओके, द व्हाट हैपेंस टू द निफ्टी? दिस इज जून 2022। निफ्टी का पी रेशियो कितना है? 19.5। कोई मेरे को बताएगा जून में क्या हुआ था? कोई मेरे को बताएगा कि जून 2022 निफ्टी का लेवल्स क्या था? क्या निफ्टी 17,000 पे था, 18,000 पे था? व्हाट वाज द निफ्टी लेवल इन जून 2022? द मार्केट्स वर एट 15,000 to 15,500 ब्रॉडली रेंज। तो आपको समझ में आ रहा है यहां पे कि जब भी पी रेशियो 20 के नीचे जाता है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि फंडामेंटली द मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। सो नाउ वी आर नोवेयर इन दैट हाई वैल्यूएशन टेरिटरी। लेट्स कम बैक ओवर हियर। 20.38 अप्रैल 2020। अब आप सब जानते हैं कि मार्च और अप्रैल 2020 में क्या हुआ था। ओके, वी ऑल नो क्या हुआ था। तो 20 के आसपास आया ये स्पेशल केसेस में, तो वहां से देखो मार्केट्स ने कितना सिग्निफिकेंट बॉटम किया। नाउ कम टू 2016, फेब 2016। कोई मेरे को बताएगा? चार्ट्स देखकर फटाफट से गूगल कीजिए, अपने अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ऑन कीजिए और मुझे बताइए जब फेब 2016 में निफ्टी का लेवल क्या था? फेब 2016 में निफ्टी का लेवल क्या था? पी रेशियो निफ्टी की थी 19.34। 19.34 पी रेशियो। चलो मैं आपको बताता हूं चार्ट्स पे कि जब पी रेशियो यहां पे होती है तो फेब 2016, हम जाते हैं फेब 2016 में। ओके, सी दिस, अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। दिस इज फेब 2016। द निफ्टी वॉज एट 13,500 लेवल्स। पी रेशियो, अब निफ्टी फेब स्टार्ट किया महीना 15,000 से, 15,000 से निफ्टी ने 13,400 भी मारा 2016। सॉरी, दिस इज बैंक निफ्टी। ओ सॉरी। ओके, यस, सो दिस इज फेब 2016। यस, all of you guys are right. That is 7,000 levels broadly on Nifty. अब आप देख लो पूरा फेब का महीना, हमने फेब का महीना स्टार्ट किया यहाँ पे 7,600 पे, और यहाँ पे हमने 6,800 पे करेक्शन एंड किया। अब ये जो बॉटम बना, ये अगेन अगर आप मेरी ऑब्जर्वेशंस को समझ पा रहे हो तो वी अगेन फॉर्म द बॉटम एट पी रेशियो ऑफ बिलो 20। आर यू फॉलोइंग दिस? ये आपको कोई नहीं बताएगा कि पी रेशियो अब 20 के नीचे आ गया है, तो मतलब वहां पे मार्केट्स बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाते हैं। व्हाट इज द करंट पी रेशियो? कैन यू सी दिस लाइन ओवर हियर, दिस डेटा ओवर हियर, 20.69। मतलब वी मे बी अ मंथ अवे। मतलब अगर होप करो कि मैं तो बोलूं कि अगर 5% का करेक्शन और इंडेक्स में आ जाए नेक्स्ट मंथ में,
5% का करेक्शन इंडेक्स में और आ जाए, और अगर ये 20 के नीचे पी रेशियो चला जाएगा, तो आई एम टेलिंग यू, यू वुड लव दिस अपॉर्चुनिटी, और आप बोलोगे कि मैंने ये जो फेसबुक लाइव अटेंड किया है आज, इट वॉज वर्थ एवरी मिनट एंड एवरी माइक्रो सेकेंड फॉर यू. आई होप यू अग्री. यस, गिव मी एन emphatic yes. Give me an emphatic yes. I am telling you the hidden, the most supreme observations on the fundamentals of the Indian indices. Supreme observations. Okay. अब एक क्वेश्चन आएगा. I'm sure many of you guys, I mean most of you guys are smarter than what our analysis is. I'm sure one question you will get is, भैया अगस्त 2011 में निफ्टी का पी रेशियो 20 के नीचे आया, और पी रेशियो अगस्त 2011 से लेकर 2014 सितंबर तक पी रेशियो 20 के नीचे था. तो ये टाइम में तो मार्केट ने जोर से करेक्ट किया होगा. ओके, सो फॉर दिस वी गो बैक टू द चार्ट्स अगेन. अगस्त 2011, so we come to August 2011, and then we see that from August 2011, okay, till 2014 May, markets ने क्या किया? You will be amazed again. August 2011, this is where it is. This is August 2011. Okay, this is August 2011. So अब मैं आपको अगस्त 2011 पे आए हैं. हम देख रहे हैं कि यहां से देखो, मैंने अभी भी बोल रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स नया लो नहीं बनाएगा. पॉसिबल है कि इंडेक्स नया लो बनाए, बट उसके बाद क्या होता है, और ये जोन जो होता है, इसमें डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शॉपिंग करना. आपको आपके फेवरेट स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाना यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है. एसआईपी में अमाउंट रिड्यूस मत करो, एसआईपी में अमाउंट इंक्रीज करते जाओ, मेगा इंक्रीज करते जाओ जब जब इंडेक्स की पी रेशियो 20 के नीचे होती है. यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस. ये देखिए, 2011 अगस्त के बाद में आप सिर्फ देखते जाइए, 4500 4700 के आसपास का इंडेक्स था ये लेवल्स पे. हाँ, हमने 4400 भी मारा, 4500 का कुछ लो मारा हमने इंडेक्स में, बट लुक एट द अप ट्रेंड आफ्टर दैट. और हम मई 2014 पे आते हैं तो देखिए मार्केट्स कहां पे पहुंच गए, 7500. तो हमने 4500 में जो हमने यहां पे जो बाइंग की थी 2 मंथ 3 मंथ विंडो में, वो बाइंग और जो हमें एवरेजिंग इफेक्ट है, उसने हमें मल्टीप्लाइड रिटर्न्स दिया इंडेक्स में. ये तो मैं आपको सिर्फ निफ्टी बता रहा हूं. अब इमेजिन कीजिए ये पीरियड्स में स्टॉक्स ने क्या वंडरफुली परफॉर्म किया होगा. ओके, सो आई होप यू लव दिस ऑब्जर्वेशन दैट द मोमेंट निफ्टी गोज बिलो 20 पी, वेदर इट्स 2011, मैं आपको 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, वेदर इट्स 2016, 7 साल पहले की बात बता रहा हूं, 2020, 2022, जस्ट 8-9 मंथ्स बैक की ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूं मैं. सारी ऑब्जर्वेशंस में जब भी निफ्टी की पी रेशियो 20 के नीचे जाती है, 19.5 के आसपास सेटल होती है, वो फैंटास्टिक मंथ्स हुए हैं जहां पे आपको डरना नहीं है, जहां पे आपको डरना मना है. आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, डरना मना है. आई होप यू अग्री विथ मी ओवर हियर. विल यू बी अफ्रेड ऑफ द मार्केट करेक्शन? डरना मना है यहां से. तो वी आर एट 20.69. मे बी द पी रेशियो एज आई सेड कैन फॉल बिलो 20. प्रे एंड होप दैट द पी रेशियो फॉल्स बिलो 20 by March. You will always remember that you joined one of the supreme outlooks and understanding of markets. And that is why when people ask me, अरे यार, I mean, I am holding stocks XYZ, stocks are going down. मैं हमेशा यही बोलता हूँ लोगों को, either you can see from next 1 day to 1 month, or you see from here to the next 1 to 3 years. If the stocks are quality and if they can perform from 1 to 3 years, then
डोंट वरी अबाउट अ 5% 10% करेक्शन, डोंट वरी, है ना। हम इतनी छोटी सोच मत रखा करो कि हम 5% और 10% करेक्शन में हम हिल जाए, है ना। बी स्ट्रॉन्ग एंड यूज दीज अपॉर्चुनिटीज, दीज आर क्लासिकल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मैंने आपको, चलो एक पॉइंट आपको बता दिया मैंने, विच वॉज मार्केट सेंटिमेंट, करेक्ट, फर्स्ट मार्केट सेंटिमेंट। सेकेंड मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल। थर्ड मैं आपको बताता हूं टेक्निकल। ओके, अब ये टेक्निकल भी कैसा है, फॉर एग्जाम्पल ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ठीक है, ये एक इंडिकेटर है डोंकियन चैनल। ये जब भी लोअर एंड पे आता है, ये कल की क्लोजिंग है डाउ की, ये जब भी लोअर एंड पे आता है, यहां से हम देखते हैं कि एक अच्छा बाउंस आता है डाउ जोन्स में। मैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल हायर एंड पे आ जाता है तो करेक्शन आता है, लोअर एंड पे आता है तो रिकवरी आती है। इसकी हिस्टोरिकल आपको फैक्ट्स बताऊंगा। तो ये है रिसेंट हिस्ट्री डाउ की। जैसे कि अभी दिसंबर 2022 में व्हेन डाउ केम बैक टुवर्ड्स दिस लोअर इन द डोंकियन चैनल, कुछ देश का कंसोलिडेशन, उसके बाद में बहुत अच्छी पिकअप और रैली आई थी, 1500 2000 पॉइंट की रैली आई थी डाउ जोन्स में वहां से। तो ये एक इंडिकेशन है कि डाउ मे नॉट फॉल बट मे एक्चुअली गेट इनटू अ बाउंस फ्रॉम हियर इमीडिएटली। ओके, ये शॉर्ट टर्म की ट्रिगर है। बट जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो निफ्टी की 50 डे मूविंग एवरेज की है। अब इसके लिए मैं वापस आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूं। ओके, सो आप एक फैक्टर यहां पे देखना, ओके, एंड जस्ट बी विथ मी बिकॉज यू विल लव दिस ऑब्जर्वेशन। Whenever the Nifty has fallen, this green line what you can see is the 50 day moving average. Okay, the green line, चलो मैं zoom कर लेता हूँ इसको so that you can see it on your screen, full screen। और ये 200 डे मूविंग एवरेज है। अब जब जब निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, इट बाउंसेस बैक, रीटेस्ट द 50 DMA, फेल्स टू क्रॉस ओवर, कम्स बैक अगेन, सेकेंड रीटेस्ट, comes back again, third retest, and then it falls. What happens from here on? First things first, the 200 day moving average is always broken. The 200 DMA is always broken in such scenarios. Now let's look at the previous ones. ठीक है, most recent one, चलो let's, हाँ, मोस्ट रिसेंट वन वॉज दिस, निफ्टी का करेक्शन, रीटेस्ट टुवर्ड्स द 50 डे मूविंग एवरेज, फॉल, रीटेस्ट, बाउंस, एंड देन 200 DMA इवेंचुअली ब्रेक होता ही होता है। लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन हियर, दिस वॉज द कोविड सेल ऑफ। सो फर्स्ट टाइम फॉल, अ बाउंस बैक, देन अ सेकेंड रीटेस्ट ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज, सेकेंड रीटेस्ट ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज। लेट्स लुक एट अनदर वन, sharp correction, bounce back to 50 DMA, and then look at it, 200 day moving average break होता ही है in that scenario of correction. Look at this, classical 2018 sell off, a bounce back, 50 day moving average, first retest fail, second retest fail, just saving the 200 day moving average, again bouncing back, एंड देन रीटेस्टिंग। तो ये सारे फैक्टर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं। व्हाट आर दीज फैक्टर्स इंडिकेटिंग टू यू नाउ गाइस? व्हाट आर द 3 फैक्टर्स इंडिकेटिंग टू यू? द मार्केट ब्रेथ, द फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल्स। ये तीनों फैक्टर्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं? that this 200 day moving average will eventually be broken. Okay, but the markets are eventually forming a base. अब मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स विल ऑलवेज फॉलो स्टॉक्स। अब आप ये पैटर्न देखिए, बजाज फाइनेंस जो 7700 पे टॉप आउट किया, ओके, 7700 पे टॉप आउट किया, सेलिंग आई, 50 डे मूविंग एवरेज पे आया, स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज पे आया। अब देखो कितना, ऑलमोस्ट 1 मंथ स्टॉक ने निकाला 200 DMA पे, उसके बाद एक लास्ट करेक्शन आया। अब अगर आपको ध्यान होगा कि व्हेन बजाज फाइनेंस वाज हियर दिस डे, द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड फॉर बजाज फाइनेंस, जैन एंड या फेब फर्स्ट वीक में रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे बजाज फाइनेंस के, एंड दे वर बम्पर रिजल्ट्स फॉर बजाज फाइनेंस।
विच मीन्स जो पुरानी सेलिंग थी या पेन थी सब निकल गया स्टॉक में। तो ये जो 200 डीएमए का रिट्रेसमेंट था ये बहुत ज्यादा जरूरी था, कंप्लीट हो गया और स्टॉक ने बाउंस चालू कर दिया। सो विच मीन्स दिस स्टॉक शुड इमर्ज एज द लीडर इन द अपकमिंग रैली फॉर द मार्केट्स। तो हो सकता है वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट बजाज फाइनेंस मे नॉट टेस्ट द प्रीवियस लो एंड इट मे बी द फर्स्ट वन टू ब्रेक पास्ट अबाउट 200 डीएमए अपसाइड में और एक नया रैली स्टार्ट करने में। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल टाइटन, ये भी एक स्टॉक था, सेल ऑफ 50 डीएमए का रेजिस्टेंस, सेकेंड करेक्शन 50 डीएमए का रेजिस्टेंस, देन लुक एट दिस, विच मीन्स 200 मूविंग एवरेज कट होते हैं, उसके बाद नीचे जाता है, फिर ये देख रहे हो कि एक बाउंस आता है, 2 दिन की फियर्स सेलिंग आती है, उसके बाद में मेजर बेस बनता है स्टॉक्स में। ये हमने बजाज फाइनेंस में भी देखा, टाइटन में भी देखा, 2 डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स, डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स। अब आप मेरे को बताओ, ओके, नाउ यूजिंग दिस व्हाट विल हैपन ओवर हियर, व्हाट शुड हैपन ओवर हियर? This is ICICI Bank. Now you tell me what is going to happen over here most likely. ICICI Bank ideally should also correct, but अगर 800 के आसपास आता है which means the previous low, तो I think it's a classical buy for ICICI Bank, which means maybe another 30 to 40 rupees on the downside. अगर ये आता है तो ये भी एक स्टॉक है जो बॉटम आउट हो जाएगा। अब ऐसे करके आप बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स निकाल सकते हो। इन्फोसिस फॉर एग्जांपल, अगर आपको ध्यान होगा तो इन्फोसिस ने भी सेम किया, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके लो किया, 1 महीना स्पेंड किया। सो बेसिकली द पॉइंट इज द स्टॉक हैज टू स्पेंड 1 month, एटलीस्ट 1 month बिलो 200 मूविंग एवरेज। नाउ यू पुट ऑल ऑफ दिस इन टू कॉन्टेक्स्ट एंड टेल मी निफ्टी में क्या होना चाहिए फिर, विच मीन्स निफ्टी में क्या होना चाहिए? Will we break 18,000 first or will we break 17,400 first? Easy question. Come on. Easy, very easy question. You keep liking the video. Guys, you keep liking and sharing the video for all those who have not done it. This tells you that the Nifty should also break below its 200-day moving average and spend at least a month below 200 DMA. Nifty should spend at least a month below 200-day moving average. तब जाके करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। Now you put the 3 points together. Okay, I'll go back to the presentation and you put the 3 points together. The CMB indicator which tells you that in a process of 1 month the markets will eventually form a bottom. The PE ratio which tells you that at 20.7 where we are right now, maybe another 5% correction, but don't reduce your SIPs, don't exit your mutual funds. I am still telling you, it may turn out to be one of the best zones where you can buy. And the third observation which I showed was on the 50-day moving average. Now all 3 data points indicate that we could be at a cusp from here to next 1 month of forming a major bottom. देखो 1 month can extend to 1.5 2 months, then don't put it कि मार्च एंड की सीरीज में हमको लेना है। कोई मार्केट एग्जैक्ट टाइम वाइज देख के बॉटम आउट नहीं करेगा, but the point is any major correction from here, 5% correction broadly, should be taken as an opportunity where you start deploying money. Data points हो सकता है कि नेगेटिव आएंगे, हो सकता है कि some events में turn out negative, but keep your investment style, keep your trading style objective, don't keep it subjective. मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं पे भी मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपको फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। जैसे ही पी रेशियो 20 के नीचे आता है, इसे इट्स अ क्लासिकल लेवल टू गो कॉन्ट्रा ऑन द इंडाइसेस।
it has worked out beautifully in the last 8, 10 years, 12 years of history of the Nifty. So I don't see any reason why it should not work this time around as well. So that's one of the major reasons. This is what I wanted to share for all of you guys. I hope you loved the Facebook Live webinar. You can contact us for any kind of a training as well as advisory. I will admit the advisory is not going great, but then it's always better to be very truthful and ensure that you. So we've given as least number of calls as possible. हमारी डे की एवरेज होती थी 3 से 5 कॉल अल्टीमा में, अब हमारी वीक की एवरेज हो गई 3 कॉल. तो उससे आप समझ जा रहे हो कि बिकॉज द इंटेंसिटी टू मेक मनी, the opportunity to make money is just not there in this kind of a market. So that is why we just keep on testing small stocks, but then when things don't work, we reduce the number of trades significantly. So again, as I said, it's a phase of the market. ये ऐसा फेज है जहां पे लोग अपने अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, है ना, लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, लोग ट्रेडिंग में लॉस क्रिएट कर रहे हैं. बट मैं बोल रहा हूं कि यहां से अगर मेजर करेक्शन आता है और पी रेशियोज, आपका सीएमबी इंडिकेटर अगर नेगेटिव, मेजर नेगेटिव हो जाता है, इट वुड बी अ फैंटास्टिक लेवल टू गो कॉन्ट्रा बाय ऑन द इंडेक्स. I hope you agree with me. If you agree, then just send an emphatic yes, on the comment section. Emphatic yes on the comment section. Now, if you have any questions, we will very quickly take few questions. If you guys have any questions, I think there are few guys who are asking about Adani stocks. I don't see any immediate bounce for the Adani group of names. I think you should just exit. कभी कभी क्या होता है ना, करेक्शंस में हीरो नहीं बनना चाहिए. हम कहते हैं ना कि करेक्शंस में हीरो नहीं बनना चाहिए. इट इज ऑलवेज बेटर इन दीज टाइम्स टू स्टे कॉशियस. कहते हैं ना कि जब बाढ़ आती है ना, when there is flood, then it is not courageous to go out. Okay, it is not courageous to go out. You have to wait out for the time when the waters recedes. That's the best time to step out. This is exactly what you should be doing right now as well. These are not great times where you should invest in Adani group of names. कोई प्रॉब्लम नहीं है यार अगर आप 10% ऊपर 20% ऊपर ले लो. Eventually you want to make money. You don't want to catch bottoms. आपको पैसा बनाने से मतलब है, आपको बॉटम कैच करने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. ओके, सो ऑल दोज गाइज हु हैव liked the video as well as shared the video, I will be taking comments only from them. So I will take only your queries. Yash Suryavanshi, I'll start off with that. Thank you Yash for connecting on Facebook Live. View on BHEL and PEL. यार आई एम वेरी सरप्राइज दैट BHEL एंड PEL दोनों में सेलिंग आ रही है, बट अब आपको समझ में आ जाएगा ये चार्ट देख के कि BHEL में करेक्शन और कितना आ सकता है. सो दिस चार्ट इटसेल्फ विल टेल यू दैट द करेक्शन इज नॉट येट ओवर. द स्टॉक मे करेक्ट टुवर्ड्स 64 एज वेल. सो दिस इटसेल्फ शुड टेल यू दैट पॉसिबली फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट 1 month, if the markets correct, BHEL may also correct. Even PEL का एक्चुअली द ओनली गुड पार्ट इज दैट दिख रहा है ये मल्टीपल बॉटम्स हो रहे हैं. दीज आर मल्टीपल बॉटम्स इन द स्टॉक. तो मेरा ऐसा मानना है कि बार बार जैसे स्टॉक टेस्ट करता है ना एक जोन को, उसके बाद में एक अच्छा बेस बन जाता है. तो लेट्स सी, मे बी अनदर मंथ इफ द स्टॉक डजंट फॉल सिग्निफिकेंटली, तो एक अच्छा रिवाइवल आ सकता है PEL में भी. Surendra Vemuluri, hi Surendra ji, asks me on Hindalco. So again, this chart will tell you what is going to happen. Will Hindalco break 420 first, or will it bounce? So it indicates that Hindalco should break 420 first, the 200 DMA. All stocks, major stocks, ideally complete their retracement only when they fall back to their 200-day moving average. बोलते ना सेना को वापस पीछे फॉल बैक क्यों करवाते, सो दैट दे कैन रीग्रुप, रीस्ट्रेटेजाइज एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कुड हैपन टू हिंडाल्को. सो यू मे सी अ बाउंस
ओके, बट 50 डीए में रेजिस्टेंस लेके मेरे मेरे हिसाब से वापस से एक 200 डे मूविंग एवरेज टच करना चाहिए. तो ब्रॉडली इन अ रेंज 460 to 420 कुड बी अ रेंज फॉर हिंडाल्को. रिलायंस में बरा बरा में बताओ. ओके नितेश, आई थिंक मेनी गाइज आर आस्किंग ऑन रिलायंस. सो अगेन क्लासिकल रिलायंस फॉलोइंग 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट, 200 मूविंग एवरेज, मल्टीपल टेस्ट फॉर रिलायंस इज डन. ओके, अब रिलायंस का चार्ट जब हम देखते हैं ना तो दो चीज सामने आ रही है. पहला मालूम है क्या है, इज द स्टॉक टेकिंग मल्टीपल सपोर्ट एट दिस जोन. अगर आपको दिख रहा होगा ये एक मेजर सपोर्ट जोन बन गया. यहाँ पे रिलायंस है ना, एक बोलते हैं ना वैल्यू बाय बोलो या फिर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स पैराडाइज बोलो, ये जोन आ जाता है 2260 और 2300 के आसपास. तो आई थिंक टिल द टाइम द स्टॉक होल्ड्स ऑन टू दिस 2250 2300 मार्क, इट वुड एक्चुअली बी अ गुड बाइंग जोन. बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो ब्रॉडली कंसोलिडेट भी कर रहा है. सो यू कैन सी it's largely into a range, and this is last 1.5 year. This is from September 2021. The stock is into a range. So you are at the lower end of the range, closer to the lower end of the range. You should look to add or average. SBI. अरे रोहित, you have asked me a brilliant stock. अब ये SBI का चार्ट आपको बताता हूँ. हाँ, सॉरी, दिस इज द डेली चार्ट, करेक्ट. अब आपको दिख रहा है क्या हुआ इस एसबीआई में. एसबीआई में 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, फॉल हो गया है, 1 मंथ टाइम स्पेंड भी कर लिया इसने, है ना. यहां पे एसबीआई 500 to 520 इज अ क्लासिकल कॉन्ट्रा बाय जोन, क्लासिकल कॉन्ट्रा बाइंग जोन. आई होप यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ. धीरेश धर्मश्री, हाय धीरेश जी, नमस्ते. निफ्टी मेटल पे व्यू. तो अगेन, सो एज आई सेड फॉर हिंडाल्को, मैं आपको एक दूसरा चार्ट बताता हूं, जेएसडब्ल्यू स्टील. ओके, देन वी विल डिराइव द व्यू ऑन सेक्टर. स्टॉक्स देख लेते हैं. तो ये दिख रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील में 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस 3 बार ट्राई किया, क्रॉस नहीं कर पाया. मतलब कहाँ होना चाहिए स्टॉक, यहाँ पे आना चाहिए. अगर जेएसडब्ल्यू स्टील में और 40-50 रुपीज का करेक्शन है तो यू कैन गेज व्हाट शुड हैपन टू मेटल सेक्टर, है ना. रादर देन आई आंसरिंग योर क्वेश्चन, द चार्ट्स हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, है ना. आपको समझ में आ गया होगा. ग्रेट. जय रामपुरिया, नमस्ते जय. सर योर व्यूज ऑन बिरला सॉफ्ट एंड ओरिएंट सीमेंट. बिरला सॉफ्ट इज सरप्राइजिंग बिकॉज यू नो स्टॉक टाइम वाइज प्राइस वाइज सारा करेक्शन हो चुका है. तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म है, वीकली चार्ट है. आई थिंक इट्स अ स्टॉक विच शुड हैव बॉटम्ड आउट बिकॉज इंडिकेटर्स वगैरह सब ओवरसोल्ड हो चुके हैं बिरला सॉफ्ट में. तो आई थिंक नाउ इट्स अ मैटर ऑफ पेशेंस एंड टाइम. तो आई थिंक यू शुड लुक टू बाय इफ यू आस्क मी. ओरिएंट सीमेंट आई डोंट कवर इट, सो आई विल स्किप इट. ओके, व्यू ऑन रिलायंस. नील आई कंप्लीटेड. सुरेंद्र जी हिंडाल्को पे मैंने बता दिया. यश आई आंसर्ड योर क्वेरी. सैन कुमार राय, सैन कुमार और 4-5 स्टॉक और बोल देते ना तो शायद निफ्टी 50 हो जाता था. बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, रिलायंस, टाटा केमिकल, रैलिस इंडिया, एमआरपीएल. ओ माय गॉड, मैं थोड़ा चूजी रहूंगा. आई विल पिक मे बी कपल ऑफ नेम्स. बजाज फाइनेंस और फिनसर्व पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बजाज फिनसर्व और फाइनेंस, ये देखो दोनों ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके वो करेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो ये एक अच्छा जोन है जहां पे आप स्लोली स्टेडली एंड ग्रेजुअली बाइंग में आ सकते हो. ओके, Reliance also we discussed. Asian Paints could be interesting. Asian Paints. अब ये दिख रहा है यहाँ पे भी देख लो, इंडिकेटर ने नया लो, इंडिकेटर ने लो बना दिया, प्राइसेस न्यू लो बना रहा है, बट इंडिकेटर ने एक अच्छा जंप ले लिया है यहाँ पे, विच मीन्स सूनर देन लेटर द स्टॉक शुड एंड द करेक्शन. ओके, तो आइडियली मैं बोलूंगा कि 2600 के आसपास अगर ये आ सकता है तो वहां पे यू कैन स्टार्ट बाइंग. हाँ, Atin Agarwal says HCC. I know HCC was one of my recommendations. I had mentioned, I think at 19 and a half or so, stock went up to 22, did exceptionally well. But I mean, fortunately कहो, unfortunately कहो, that was the best time for HCC. Surprisingly, this quarter results were not good for HCC, and that is why you're seeing a correction. But again, as I said, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है.
हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक और 1 से 2 रुपये गिरे, 12 के आसपास भी आ जाए, बट मेरे हिसाब से आई थिंक वो एक शायद अच्छा जोन बन सकता है जहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं HCC को. But again, this, as I said, this would not be the first preferred stock when I am expecting a market correction, a market bounce, or a rally, or a bottom out. Latif, Latif sir has asked about Cochin Shipyard. So let's quickly now take the queries. Again, Cochin Shipyard, I hope आपको चार्ट देख के समझ में आ रहा होगा. 200 DMA रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट बाकी है. 500 एंड आई थिंक 446 का 200 DMA है, which means the stock should correct by at least another 5%. I hope I've answered your query. Yash, Surendra, I answered on Hindalco. Thank you so much. Prateek Bora is asking on PSU banks on a whole. Now this is interesting. My belief is that the PSU banking stocks. अभी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चार्ट बता रहा हूँ ना. Someone has asked me a very fantastic question. PSU banking stocks पे मैं आपको एक बताता हूँ. PSU banking stocks. Now, where is the PSU banking index? PSU banking index ये रहा. ओके. अब आपको इस चार्ट देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि PSU बैंकिंग इंडेक्स का ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है करेक्शन. बट देयर इज वन थिंग विच इज इंट्रीगिंग अबाउट PSU बैंक्स. यू नो व्हाट? द इंडेक्स ऑन द वीकली एज वेल एज ऑन द मंथली चार्ट. अब ये मंथली पे आपको एकदम क्लियरली दिखेगा. ठीक है, मंथली पे देख रहे हो कि PSU बैंकिंग इंडेक्स ने एक न्यू हाई बनाया, न्यू RSI पे हाई बनाया है ना. न्यू हाई एंड न्यू RSI पे हाई बनाया ये PSU बैंकिंग इंडेक्स ने. Whenever this generally happens, it means that the index or the stock will correct first because indicator को cool off करना जरूरी है. बट ये पुराना हाई वापस से लेके जाएगा. Now whether it goes to 4,500 or whether it goes to 5,000, that will depend on of course lot of news flow. मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे. सो इमेजिन कीजिए आपके पास में इतनी सी प्राइस हिस्ट्री है. आपने देखा कि अरे RSI ने नया हाई बनाया और प्राइसेस ने नया हाई बनाया. अभी देखो 1 2 3 4 5 4 से 5 महीने का करेक्शन था, फिर वापस से PSU बैंकिंग इंडेक्स ने न्यू हाई बनाया. Okay, now we are just in the second month of the retracement. So that's why I said maybe another month, maybe another 2 months of correction for PSU banking index. But the chances of making a new high or probability of making a new high is significantly high. I hope Prateek you've understood, and you've understood the rationale and exact rationale why and how you need to look at the charts. DV slab. Now you remember DV slab पे मैंने कॉन्ट्रा कॉल दिया था आपको. ओके, यहाँ पे at 2780 समथिंग कॉन्ट्रा कॉल टू गो लॉन्ग, बिकॉज मेरे हिसाब से ये मेजर गैप कंप्लीट कर दिया था DV स्लैब ने. अगर मैं चार्ट वाइज यहाँ पे दिखा सकूँ आपको तो हाँ. सो दिस वॉज द गैप. एज यू कैन सी दिस इज अ मेजर गैप. 2020 का गैप था. इस गैप को DV स्लैब ने क्लोज कर दिया है. गैप को क्लोज कर दिया है, विच मीन्स द मेजर रिट्रेसमेंट इज डन एंड द स्टॉक शुड नाउ गो इनटू अ स्टेडी रिकवरी. तो यहां पे डरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड टू स्टार्ट गोइंग लॉन्ग, है ना. ये सेम हुआ था लुपिन में. ये देख रहा है लुपिन. मेजर बेस फॉर्मेशन ओवर हियर, मेजर गैप बीइंग फिल्ड, मेजर बेस फॉर्मेशन, है ना. एंड देन लुक एट द स्टॉक. फ्रॉम देयर द स्टॉक गोज इनटू अ सुपर्ब रिकवरी. Negative news, results were pathetic for Lupin for I think 4-5 consecutive quarters. But look at the charts. 600 का स्टॉक 800 रुपया हो गया. हाँ, वो बात अलग है कि अभी भी रिसेंटली बहुत नेगेटिव न्यूज आया था लुपिन में वापस से, है ना. that's the only ongoing thing. So we can just anticipate the bottom and then we can say that probably this is a good level to start buying. Nimit Vora I mentioned on Asian Paints and Reliance. Thank you Suyash, thank you Rohit. ONGC I think is a good buy. ONGC देखो 200 day moving average का retracement complete, stock is going up. ये ऑलरेडी बता रहा है कि ये लीडर है इस रैली का. यूनियन बैंक
Chandrasekhar, as I said, that if most of the stocks are completing their 200-day moving average retracement, even Union Bank can do it. But in the next 1 to 2 months, I think it could be a very good level to buy again. तो क्या होता है generally? So for example, in the month of December, the 200 DMA was at 46. Right now, 200 DMA is at 55. 1 month from now, the 200 DMA could be at 60. है ना? Because averages will keep on moving up higher. तो 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, तो 60 के आसपास एक अच्छा बेस बनना चाहिए यूनियन बैंक में. Woof, I think I've answered queries from all of you. Jimesh Turakia, hi Jimesh. I think I've answered on Bajaj Finance and Finserv. You can just go back to the video at the start. मैंने आपको बता दिया. Cochin Ship had answered. Delta Corp, avoid. Agarwal ji, Agarwal Chen, I think it's Chenda, if I'm not wrong. Avoid Delta Corp. It should not be your first priority. Z Entertainment, चेतन जी, why? आपको आग के साथ खिलने में मजा आता लगता है. चेतन जी, अवॉइड जी एंटरटेनमेंट. आई मीन आई विल हैव नो व्यू. आई हैव स्टॉप ट्रैकिंग द स्टॉक. मैंने आई थिंक लास्ट टाइम जब स्टॉक ट्रैक किया था ना, वो ये टाइम पीरियड में था जब 250 to 60 का स्टॉक हुआ करता था. उसके बाद हमने छोड़ दिया ट्रैक करना स्टॉक को. लॉरस लैब्स, बागरी जी, इट्स अ स्टॉक विच आई हैव ऑन ईटी नाउ. BNSN, आप रिकॉर्ड निकाल देना. मैंने लॉरस लैब्स में हर महीने मैंने सेल बोला है, एग्जिट बोला है. आई हैव नेवर लाइक दिस स्टॉक. तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये अभी भी मेजर सेलिंग पे ही लग रहा है. बॉटम फॉर्मेशन इज नॉट येट हैपेंड फॉर लॉरस लैब्स. आई विल अवॉइड. अगेन दिस इज माई बायस एंड माई व्यू. Oh, thank you so much. I hope I've answered all your queries. Akshay Jain, अच्छा, Akshay Jain is asking on HUL. विवेक वर्मा से नाराज हो लगता है. अरे नहीं विवेक जी, ऐसा कुछ नहीं है. आप क्वेश्चन पूछिए, इजी होगा तो हम डेफिनेटली आंसर करेंगे. HUL, now Akshay, again interesting because HUL has also completed its first retracement, which means from here for next 1 month the stock should consolidate. उसके बाद एक लास्ट सेलिंग आनी चाहिए जहां पे आपको बहुत अच्छा लेवल्स मिल सकता है. मे बी 2400, 350, ये जो जोन है यहां पे रिटेस्ट कर सकता है HUL. यहां पे एक अच्छा बाय बन सकता है. ओके, इट गोज विद द सेम ऑब्जर्वेशन और सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन. मैं अगर आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी बिफोर वी एंड दिस फेसबुक लाइव, इज दैट मैंने एक ही ऑब्जर्वेशन को सारे स्टॉक्स में उतारा है. दैट इज व्हाट यू शुड डू एज ए टेक्निकल एनालिस्ट और एज एन एनालिस्ट. यू डोंट यूज डिफरेंट इंडिकेटर्स फॉर डिफरेंट स्टॉक्स. आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप कभी भी कॉल ही नहीं ले पाओगे कि करना क्या है. एक ब्रॉडर व्यू निकालो, एक ऐसा इंडिकेटर निकालो जिसकी वर्क करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उसको सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में आप मैपिंग करो. योर स्ट्राइक रेट विल बी ब्रिलियंट. HDFC, AMC, जिमेश, अवॉइड. बायोकॉन इज सरप्राइजिंग है. बायोकॉन, आई थिंक, मेरे ख्याल से आई थिंक बायोकॉन will bottom out only when the rupee tops out, or rather rupee starts to appreciate. तो मुझे ऐसा लग रहा है बायोकॉन और रूपी का एक बहुत इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है. तो मे बी आई विल अवॉइड. रूपी जब तक अप्रिशिएट नहीं करेगा तब तक बायोकॉन में मेरे को नहीं लगता कोई मेजर रैली आएगा. ओके, Manik Das, PC Jeweler, yes, again this was one of the recommendations, but unfortunately the stock has not worked as per expectations. In fact, PC Jeweler, if you can see, this was a stock which we had recommended even here at 20 levels. Okay, in 2020 to start, it went up to 100, but unfortunately could not sell out, and then 100 से वापस 23 आ गया. That's what investing in high beta stocks is. It was a punt. It was a high risk play. Did not work out. Okay, so if you guys have any queries, further queries, you can WhatsApp us on the numbers which is there, as well as you can drop in your comments on the comment box. Next, जब मैं आपको Facebook लाइव करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा मल्टी बैगर्स किस तरह से फाइंड करते हैं. ओके, सो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड फॉलो आवर वीडियो